So hello everyone. So now we are going to discuss the general outlines regarding presentation. सबसे पहले I'll be giving you some general tips कि presentation आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. Now do remember that presentation is not so easy that I have told you and you have heard it and you have implemented. You cannot implement the proper sense of presentation. You cannot implement presentation in proper sense provided that you don't do written practice. So please make sure whatever I am teaching you right now, please make sure that at least 5 questions, 5 क्वेश्चंस आप हाथों से लिख कर देखें और बिल्कुल उसी प्रेजेंटेशन के फ्लो में लिख के देखें जो कि आपको मैं बता रहा हूँ. वैसा तो एडवाइजेबल है कि कम से कम आप कोशिश करें कि 2 से 3 पेपर्स पूरे इस प्रेजेंटेशन में लिख के देखें, कम से कम 100 क्वेश्चंस हाथों से इस प्रेजेंटेशन के थ्रू लिख के देखें. बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि टाइम हो सकता है आपके पास कम हो, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो आपको निकालने ही हैं फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन. नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल आउटलाइंस ऑफ द प्रेजेंटेशन. सबसे पहले सम थिंग्स माइट अपियर टू बी किडिश फॉर यू कि क्या बचपने वाली बात हो रही है यहाँ पे, बट दोज किडिश थिंग्स इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू to improve your imagination, to improve your image near the examiner, right? सबसे पहले draw margins. एक margin already बना हुआ होता है. Start the habit of drawing margins. To draw the margins, you don't need any kind of scale. You don't need pencil. You can just use the pen and accordingly normally एक margin खींच सकते हो. That's it. Now, drawing this margin is going to help you in a lot of ways. Firstly, obviously, when you draw the margin, the paper appears to be more neat. The paper appears to be more clean. And other thing is that it's an indirect advantage to you. Supposingly, जो पेपर का साइज है आपका, जब आप दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ कर लेते हो तो कंपैरेटिवली क्या होता है कि जो रिटर्न स्पेस होता है दैट रिड्यूसेस. एंड सो इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम वर्ड्स वहाँ फिट होते हैं. सो अकॉर्डिंगली द answer length of the answer increases. It's an indirect benefit, but yes, it's a benefit. कब ड्रॉ करोगे मार्जिन? द बेस्ट इज कि जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है उसी टाइम आप मार्जिन ड्रॉ करके रख लें. उसके बाद मेक ए हैबिट फ्रॉम नाउ, मेक ए हैबिट फ्रॉम नाउ. प्लीज अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड प्लीज डोंट थिंक दैट यू नो पेपर खत्म हो जाएगा देन आई एम गोइंग टू कम बैक एंड अंडरलाइन. दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन. नेवर एंड एवर यू आर गोइंग टू कम बैक एंड अंडरलाइन. Make a strong habit that as and when you are writing the answers, you are underlining the keywords. सेक्शन नंबर अंडरलाइन कर लिया, चैप्टर नंबर अंडरलाइन कर लिया, जजमेंट का नाम अंडरलाइन कर लिया. लेट अस से पब्लिक कंपनी इज यूज्ड, यू हैव अंडरलाइन. सम लिमिट्स इज यूज्ड, यू हैव अंडरलाइन. सम स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग इज यूज्ड, यू हैव अंडरलाइन. ऑल द की पॉइंट्स हैव अंडरलाइन. नाउ मेक श्योर you make it a habit. This is something that is indeed going to be very, very beneficial for you. Why this is very, very beneficial for you? This is going to be very, very beneficial for you because what is going to happen is, just try and understand, when you don't underline the keywords, you are forcing the examiner to read your complete answer. You are forcing the examiner to read your answer word by word and you yourself know that your answers, आपने अपने क्या answers लिखे हैं. आप नहीं चाहोगे कि आपके examiner word by word reading करे. When the examiner will start reading word by word, then he will come to know about the several flaws you have done, about the grammatical mistakes you have done. So avoid that. But rather when you underline the keywords, supposingly the keywords convey everything. The keywords convey everything, the section number, the main points, कौन सा resolution चाहिए, which resolution, the number of days, every key, every important area is intimated by the keywords. तो हो सकता है कि examiner might not read the full answer and he may give you good marks by underlining your keywords, by referring your keywords. And particularly for the students whose handwriting is very, very bad, for them this is like a Sanjeevani, that underline the keywords so that मेक श्योर दैट एग्जामिनर आपका कीवर्ड्स देख ले और पूरा आंसर रीड ना करे वहां पे. उसके बाद make a habit that whenever a question on case study is asked, now you know that most of the questions in CA exams are asked pertaining to case studies. Always answer your case studies in a minimum of 3 paragraphs, and you will involve 3 different headings for that. 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आप डिवाइड करोगे अपने आंसर्स को. फॉर योर रेफरेंस यू कैन रेफर द न्यू स्टडी मटेरियल. इन द न्यू सिलेबस स्टडी मटेरियल ऑडिट एंड लॉ, आफ्टर द एंड ऑफ चैप्टर्स they have specified the questions and the answers they have drafted exactly in these 3 classifications. That is issue involved. First of all, you are going to write what was the issue involved. Then the second heading is going to be provision and explanation, and the third heading is going to be conclusion. So you are going to give these 3 headings. You are going to underline these 3 headings, and according you are going to write the answer. These are the minimum 3 categories that you are going to divide your answer into.
right? Supposingly, for example, a question is on, let us say, loan to directors. So issue involved में you'll be writing loan to directors. Provision and explanation में you'll be writing the explanation of section 185. If any further references there, any further interlinking skill is used, any further reference to any other section is used, you can refer that. And conclusion में you can write कि डायरेक्टर को लोन देना है या नहीं देना है, या in this particular question लोन दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो. उसके बाद whenever the direct questions comes, direct questions मतलब for example what are the joint auditors, what are the joint responsibility of auditors, right? So whenever a direct questions comes, in audit they have asked you a direct question that what are the advantages of energy audit. So supposingly a direct question has come in audit. In that particular situation, always try to give the background first. Background first मतलब supposingly उन्होंने पूछा आपसे कि what are the methods of obtaining evidences of peer review. आपने लिखा the various methods of obtaining evidences in peer review are point number 1, 2 and 3, and you have completed your answer. Don't do that. First of all, you try to give a general background. Okay, if they have asked me what are the objectives of peer review, I'll be first writing what is peer review. After writing what is peer review, in the next paragraph, I'll be writing the objectives of peer review are. Then I'll be underlining objectives of peer review, and then I will be answering the answering points. Okay, point number 1 ये objective है, point number 2 ये objective है, point number 3 ये objective है, point number 4 ये objective है. So always try to do that. Always try to do that, right? जैसे for example, क्वेश्चन क्या आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू. सो इफ द क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू, यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू राइट द मीनिंग ऑफ पीयर रिव्यू in the first paragraph. Then in the next paragraph you are going to write the objectives of peer review. Then you are going to underline this. Then you are going to write the objectives one by one. Point number 1, point number 2, point number 3. So always make sure that when the direct questions comes, try to give a bit of background first, use more of points, and also use diagrams if appropriate. Diagrams कैसे use कर सकते हो आप? For example, the question is what are the various types of due diligence. ठीक है, the question is what are the various types of due diligence. Now when the question is what are the various types of due diligence, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो होता है कि आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, yes the various types of due diligence are. एक हो गया various types of due diligence, I have made something of this kind. And then accordingly I have written here due diligence 1, financial due diligence, legal due diligence. Accordingly मैंने यहाँ पे लिख दिया, और नीचे मैंने लिख दिया diagrammatical representation of due diligence. Diagrammatical representation of due diligence. Let us say question is the qualities of a chairman. The qualities of a chairman law के अंदर सवाल पूछा गया है. Then particularly you can just use a diagram. Qualities of chairman. He should have knowledge of economics. You should have knowledge of finance. He should have knowledge of law. He should have knowledge of accountancy. तो अकॉर्डिंगली आपने क्या कर दिया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया. यू हैव एक्सप्लेन द सेम थिंग यूजिंग ए डायग्राम. तो एक तो क्या होता है कि कंटेंट फिलर्स होते हैं, यदि सारे कंटेंट फिलर्स, दे एक्ट एज गुड कंटेंट फिलर्स. ऊपर से क्या होता है कि व्हेन द एग्जामिनर टर्न्स योर पेजेस एंड उसको बीच बीच में डायग्राम दिखता है, दैट डज क्रिएट ए रियली वेरी गुड इंप्रेशन फॉर योर आंसर्स आउट देयर. उसके बाद ट्राई यूजिंग बेस्ट लैंग्वेज एट द स्टार्ट ऑफ द आंसर्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अगर ऑडिट लॉ में मुझसे क्लासेस ले रखी हैं, तो इन एवरी पार्टिकुलर चैप्टर हैव थॉट यू द बेस्ट वे टू स्टार्ट एन आंसर इन दैट चैप्टर. तो ऑब्वियसली अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लॉ के अंदर ही हमने ऑलमोस्ट 6 से 7 चैप्टर में डिस्कस किया कि हाउ टू स्टार्ट द आंसर. ऑडिट के अंदर वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू स्टार्ट द आंसर, बट ट्राई यूजिंग द बेस्ट लैंग्वेज एट द स्टार्ट ऑफ द आंसर. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज अबाउट नोटिस ऑफ मीटिंग. ठीक है, सपोजिंगली आप अपने आंसर को ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, the provisions relating to notice of board meeting has been contained in Section 173,
of chapter number 12 of Companies Act 2013, and maybe then you can further elaborate read with companies appointment and qualification, that is read with companies meeting of board and its powers rules. तो you have drafted a very good start. आपने क्या कर लिया है, बहुत ही अच्छा start अपने लिए draft कर लिया है कि okay this is how I'm going to start my answer. So that is very very important. You can draft it for every chapter. You can draft it for every chapter. एंड कहाँ से मिल जाएगा आपको, व्हेन यू रेफर द प्रैक्टिस मैनुअल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, व्हेन यू रेफर द रिवीजन टेस्ट पेपर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, व्हेन यू रेफर द मॉक टेस्ट पेपर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. तो दे हैव ऑलवेज गिवन सम काइंड ऑफ गुड इंट्रोडक्शन. यू विल फाइंड इट इन डिफरेंट चैप्टर्स. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू आंसर ऑफ कारो 16, वो तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे दैट यू नो एज notified in para 3 of Caro 2016, dated 29th March 2016, pursuant to section 143 subsection 11. तो बेसिकली दे हैव यूज्ड कि हाँ भाई सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 के अंदर नोटिफाई हुआ है, 29 मार्च 2016 को नोटिफाई हुआ है, एंड यूजिंग ऑल दोज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे हैव ट्राइड कि जो आंसर की स्टार्टिंग हो वो बहुत ही बेहतरीन बने. तो आप भी हमेशा क्या कोशिश करें, आप भी हमेशा कोशिश करें ट्राई यूजिंग बेस्ट लैंग्वेज एट द स्टार्ट ऑफ द आंसर. व्हाट यू कैन डू इज सपोजिंगली यू आर रेफरिंग द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्टर्स ऑन योर एमटीपीज एंड आरटीपीज. इन एनी वन आंसर ऑफ योर एमटीपी और आरटीपी यू विल सी कि यार कितना अच्छे से स्टार्ट किया है, एंड दिस इज समथिंग आई कैन यूज इन ऑल द आंसर्स. सो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट पिक अप फ्रॉम देयर. ठीक है ना. सिमिलरली फॉर ऑडिट, व्हेन यू विल बी रेफरिंग टू द आंसर्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, यार कितना अच्छा स्टार्ट किया है, हाउ ब्यूटीफुली दे हैव स्टार्टेड. फॉर एग्जांपल, एज पर द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. तो व्हेन यू राइट इन द एग्जाम्स दैट एज पर द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट डेफिनेटली क्रिएट्स ए गुड इंप्रेशन. आपने स्टार्टिंग क्या किया है, बहुत अच्छा किया है. आपने स्टार्टिंग क्या किया है, बहुत ही अच्छा किया है वहां पे. So that definitely creates a very very good impression. So always try using those. तो क्या क्या डिस्कस किया अभी तक हमने, वी हैव टू ड्रॉ मार्जिन्स, वी हैव टू अंडरलाइन कीवर्ड्स, वी हैव टू ट्राई टू आंसर द केस स्टडीज इन इश्यूज इन्वॉल्व, प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, एंड सपोजिंगली इफ यू आर नॉट गिविंग दिस कैटेगराइजेशन हेडिंग, मेक श्योर कि यू आर यूजिंग एटलीस्ट 4 to 5 पैराग्राफ्स. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू गिव ए बैकग्राउंड फर्स्ट, यूज पॉइंट्स, यूज डायग्राम्स इफ एप्रोप्रिएट, ट्राई यूजिंग बेस्ट लैंग्वेज एट द स्टार्ट ऑफ योर आंसर्स. हमेशा कोशिश करें कि आपकी जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, एकदम बवाल होनी चाहिए. जैसे कारो में 143 सबसेक्शन 11 को यूज किया, डेट्स को यूज कर लिए, कंपनीज एक्ट में यू हैव यूज chapter numbers, you have used the section numbers, and you have tried to use good phrases. So that is something that is really going to matter. That is something that is really going to matter. उसके बाद always make sure the first 3 to 4 questions are the best, and avoid any kind of cutting extra in these questions. Avoid any kind of cutting extra in these questions. Next thing what you have to remember is presentation का एक important part होता है. You always learn some good phrases from every chapter. You always learn some good phrases from every chapter and try to use them at the starting of your answer or at appropriate points on your answer. For example, whenever we study the concept of appeals, we have ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, तो यू कैन ऑलवेज यूज दैट वर्डिंग्स, यू नो, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम. जब आप ऑडिट पढ़ते हो तो असर्शन लेवल, अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर्स, तो दोज गुड फ्रेजेस, दोज की टर्म्स इफ यू आर यूजिंग इन योर आंसर एंड यू आर अंडरलाइनिंग दैम, दैट डेफिनेटली क्रिएट्स ए वेरी वेरी गुड इंप्रेशन. दैट डेफिनेटली क्रिएट्स ए वेरी वेरी गुड इंप्रेशन. सो नाउ ऑन अ डेमो बेसिस सपोजिंगली क्वेश्चन आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, तो आप कैसे लिखने वाले हो? I am going to answer it in 2 parts. Supposingly क्वेश्चन आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, आप कैसे लिखने वाले हो? वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज यू गिव ए हेडिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. आपने हेडिंग दे दिया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड अंडरलाइन दिस. आपने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया. उसके बाद यू मेक श्योर दैट योर आंसर इज डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 5 पैराग्राफ्स, कम से कम 5 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो. पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 5. दिस इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन. अनदर प्रेजेंटेशन इज यू हैव गिवन ए हेडिंग इशू इन्वॉल्व्ड. इशू इन्वॉल्व्ड हेडिंग दे दिया, अंडरलाइन कर दिया यहां पे. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, then provision and explanation,
तो प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन पे व्हाट यू कैन डू इज, नाउ यू कैन डिवाइड द प्रोविजंस इनटू पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, सेक्शन 164 ये कहता है, 164(7) ये कहता है, जजमेंट ये कहता है, and accordingly you can give a conclusion. And now supposingly there is a question of law which also involves a judiciary pronouncement, so you can again divide this answer into 4 paragraphs. Now it will become issue involved, now it will become provision and explanation, now it will become the word judicial pronouncement, and then the conclusion. तो अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो आप, केस स्टडीज का प्रेजेंटेशन कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग में बेस देना है, डायग्राम्स यूज करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी. ऑलवेज मेक श्योर कि जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही जबरदस्त है. कंपनीज एक्ट में द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज यू कैन यूज द सेक्शन नंबर, यू कैन यूज द चैप्टर नंबर्स, एंड एट द सेम टाइम जब मैं कहता हूँ कि द स्टार्टिंग शुड बी द बेस्ट, ऑलवेज ट्राई टू यूज अवॉइड ए रिपीटेटिव स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो पूरे पेपर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एज पर दिस वेरी सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर दिस वेरी सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर दिस वेरी सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट. यार क्या उसी चीज को लिखने के एक ही तरीके थे क्या? यू कुड हैव रिटन द सेम थिंग इन 3 ways. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है अबाउट लेट अस से quorum. Question is about quorum section 174. One of the presentation that we commonly follow is, if you remember the section number, you are going to write as per section 174 of Companies Act. Quorum ये कहता है. If you don't remember, you are going to write as per the relevant section. Relevant section तो लिखना ही मत यार, relevant section तो लिखना ही मत. Rather you know that this is chapter number 12, तो आप chapter number 12 लिख सकते हो वहाँ पे. क्या आप इसी आंसर को इस तरीके से नहीं लिख सकते थे कि the provisions pertaining to quorum is dealt in? क्या इसी आंसर को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते थे that Companies Act 2013 via section 174 deals with quorum? So what you have done is the same answer you have categorized into 3 different parts. अलग अलग स्टार्टिंग हो सकती है, तो एग्जाम के अंदर हमेशा कोशिश करेंगे जो स्टार्टिंग है वो डिफरेंट हो, जो स्टार्टिंग है वो यूनिक हो. दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू आउट. वो क्या करने वाला है, हमेशा आपको हेल्प करने वाला है. तो ऑलवेज मेक श्योर कि स्टार्टिंग अच्छी हो, कोशिश करें कि स्टार्टिंग अलग अलग तरीके से हो, स्टार्टिंग डिफरेंट वेज में हो. ऑलवेज मेक श्योर कि यू यूज मैक्सिमम पैराग्राफ्स इन योर आंसर, यू यूज मैक्सिमम पॉइंट्स इन योर आंसर, यू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स, यू अंडरलाइन योर की फ्रेजेस, राइट. तो always you draw the margins, you underline the keywords, you use the diagrams. तो आप प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें. अब आप एक ही चीज पूछोगे, सर इतना सब कुछ करने में टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम, वी डोंट हैव टाइम इन द एग्जाम. भाई टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम बनाना पड़ता है. स्टूडेंट्स हु गेट 80 मार्क्स इन लॉ, हु गेट 80 मार्क्स इन ऑडिट, दे ऑल्सो मैनेज द टाइम, दे ऑल्सो राइट ऑल ऑफ दिस, दे ऑल्सो राइट द पेपर्स इन सच ए वे. यू नीड टाइम फॉर दैट, यू नीड राइटिंग प्रैक्टिस फॉर दैट, यू नीड टू इंक्रीज स्पीड फॉर दैट. तो टाइम तो आपको बनाना पड़ेगा. डेफिनेटली आप कर पाओगे, डेफिनेटली आपको टाइम मिल पाएगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज के लिए टाइम बनाना पड़ेगा. एंड वेदर व्हाट आई सजेस्ट यू इज दैट इंस्टेड ऑफ जस्ट कि मतलब सिर्फ पेपर को लिख दिया 100 नंबर का, अगर आपने 80-85 मार्क्स भी बहुत अच्छे से लिखा है ना, विद ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, विद गुड इंटरलिंकिंग, विद गुड लैंग्वेज, दैट इज गोइंग टू कंपैरेटिवली फेच यू मोर मार्क्स, बिकॉज दिस इज सीए फाइनल्स. यू नीड गुड कंटेंट एज वेल एज गुड प्रेजेंटेशन. एंड याद रखना, प्रेजेंटेशन क्या है कि वो केक के ऊपर चेरी लगा देना जैसा है, कि केक का टेस्ट तो अच्छा था, बट जैसे उस केक के ऊपर चेरी लग गया, उसकी वैल्यू भर गई, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई. तो सेम इज लाइक ए प्रेजेंटेशन, सेम इज योर प्रेजेंटेशन. आपका कंटेंट अच्छा है, बट अगर आपने कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट कर दिया तो इट इज लाइक पुटिंग दैट चेरी ऑन द केक. आपका वैल्यू ऑफ आंसर्स इंक्रीज हो गया एंड आपको पता भी नहीं चलेगा 6 से 7 नंबर आपके कहाँ इंक्रीज हो गए. सो प्लीज आप क्या करो, फोकस करो प्रेजेंटेशन के ऊपर. जिसने मेरी फास्टर क्लासेस ली है, रेगुलर क्लासेस ली है, हमने चैप्टर बाय चैप्टर प्रेजेंटेशन पे काम किया है. जिसने नहीं लिया है, यू रेफर प्रैक्टिस मैनुअल, यू रेफर आरटीपीज, यू रेफर एमटीपीज. इन एवरी चैप्टर द आरटीपीज, द एमटीपीज विल टीच यू अ लॉट अबाउट द प्रेजेंटेशन स्टफ. सो डू रिमेंबर all these golden rules in mind. All the very, very best.